incident rays are actually meet Excuse me, at sir. a point on the principal axis. Point after reflection. This point is called as principal focus of concave mirror. बोले वो सर मैंने गलती से दूसरे क्लास की लिंक ज्वाइन कर दी थी, तो आपने भी क्या बताया मुझे बता सकते हो? कुछ नहीं, इतना जो बोर्ड पे लिखा है उतना ही पाया करवाया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे if the incident rays are parallel to principal axis after reflection they are meeting at a point on the principal axis। तो जो पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज हो रहे, जो पॉइंट पे वो मिल रहे, एक्चुअली मीट हो रहे यहाँ पे, इसीलिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। और ये जो फोकस होगा ये रियल फोकस होगा। दिस फोकस इज कॉल्ड एज रियल फोकस। दिस फोकस is called as real focus. Tanish, ritual, why it is so called real focus? Bata beta. Why this focus is called as real focus? Incident. Why not virtual focus? Bolo, Tanish. Sir, can I tell? Because incident ray actually meet at that point after reflection, so it is a real focus. Incident ray reflection के बाद मिल रहे, तो you can say that reflected rays are actually meet, not incident ray. Incident ray तो यहाँ पे strike हो रहे, यहाँ पे strike हो रहे, okay? तो incident rays are getting reflected back, और reflection के बाद वो actually यहाँ पे मिल रहे, not appear to meet, they are actually meet at a point. When the reflected rays are actually meet at a point on the principal axis, so it is called as real focus. तो कॉन्केव मिरर की जो फोकस होगी दैट इज द रियल फोकस। सो कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस। नोट डाउन दिस पॉइंट, कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस। अभी हमको डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो? कैन आई रब दिस? ये वाला रब करूं क्या? डायग्राम वगैरह रब करूं? हो गया? पॉइंट है। हाँ, और एक दो पॉइंट है अभी। फोकल लेंथ बाकी है, अपर्चर बाकी है। हो गया सर? बोलो सर कितने टर्म्स है इसके बारे में? और दो तीन पॉइंट बॉक्स लिख। चलो, प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं? व्हाट इज अनदर नेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर? बोलिए। सर कर्व्ड आउटवर्ड्स, और जिसका आउटर साइड जो सर डाइवर्जिंग मिरर। Expanded. It is also called as diverging mirror. It is also called as diverging mirror. Diverging mirror, which diverge the light. Okay. Now see, let's draw. Sir, then concave mirror is means Converging. 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 वो converge करता है, अच्छा, इसका कहाँ पे ड्रॉ करूँ? एक मिनट। I will take this center of curvature like this. Okay.
तो यहाँ पे somewhere यहाँ पे है. So this is the convex mirror. Outer part, bulge part is reflecting polish. Outer bulge part is polish. तो इसका center of curvature अंदर आएगा. तो यहाँ पे somewhere here it is center of curvature. Okay. तो geometrical center of this convex mirror is called as pole of the mirror. तो अभी मैं principal axis draw करूंगा. This is the principal axis. Now, if the incident rays are parallel to principal axis, okay. Okay. Now let's draw the reflected rays. These are the reflected rays. These are the reflected rays. Reflected rays. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है डाइवर्ज हो गए, these are the diverging rays, right? So when these diverging rays are appear to meet at a point on the principal axis, तो appear to meet मतलब यहाँ पे मिले ऐसा लगेगा, तो इसको डॉटेड दिखाना है. तो यहाँ पे आएगा ये फोकस. दिस इज कॉल्ड एज फोकस. Okay, how can we define the principal focus of convex mirror? A parallel beam of light. Definition लिख लेते इसका. A parallel beam of light. A parallel beam of light. Parallel beam of light. After reflection. After reflection. After reflection. From a convex surface. From a convex surface. Convex surface. Convex surface. Diverges. Diverges. And the rays do not meet. And the rays do not meet. Do not meet. However, on producing backward, देखो यहाँ पे ये जो diverging rays है, reflected rays, these reflected diverging rays are not meeting, but if you extend backward, these rays appear to meet at this point. These rays appear to meet at this point on the principal axis. They do not meet. However, on producing backward, backwards, the rays appear to meet. The rays not actually meet.
रेज appear to meet, यहाँ पे appear to meet हो रहे हो, these rays are appear to meet, appear to meet on principal axis. So this point is called as principal focus. This point is called principal focus. Principal focus of convex mirror. Convex mirror. Convex mirror. Parallel beam of light after reflection from a convex surface diverges. देखो यहाँ पे A point पे, this is the point of incidence, this is the point of incidence, this is the point of incidence, this is the point of incidence. Okay, तो यहाँ पे diverge हो रहे हो. अच्छा, मेरा सवाल एक है, आनंदी को, आनंदी, can you hear me, आनंदी? Yes, sir. Do this mirror obey the laws of reflection? Spherical mirror, law of reflection obey हो रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे laws of reflection obey हो रहा क्या? Hello, sir. Hello. हाँ, जय Sir, can you जय tell? बोलो, जय परदेशी बोलो. यस सर हो रहा है हो रहा है तो कहाँ है No, यहाँ sir, पे? नहीं हो नॉर्मल रहा. किधर है? नॉर्मल सर किधर है नहीं हो यहाँ रहा पे? वो नहीं हो रहा सर Sir, can we side? नहीं सर, नहीं हो रहा है क्योंकि सर ये स्फेरिकल मिरर है. हाँ तो क्या हुआ? हाँ सर तो क्या हुआ? क्या हुआ? सर इसमें नॉर्मल कहाँ से होगा फिर नॉर्मल होना चाहिए ना, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते ना, एस और नो? क्यों नहीं कर सर सकते? स्फेरिकल फिर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं भाई, क्या बात करता है रे, नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ना. लकड़ी का गया मेरा. सर, जो इंसिडेंट रे का एंगल जो है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल को मैच नहीं कर रहा. मैच करना चाहिए. एवरी सरफेस, प्लेन सरफेस या स्फेरिकल सरफेस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कीप इन माइंड. देखो मैं बताता हूँ कैसे. ये वाला रब करूँ कि इधर का? कैन आई रब दिस पार्ट इफ यू आर फिनिश? लेफ्ट साइड का ये वाला रब कर देता हूँ. ओके, अभी मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. ये सेंटर है, ये रेडियस है. ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ किया which touches the circle. ओके, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये टेंजेंट, दोनों में कितना एंगल है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? 90 व्हाट इज दिस degree. एंगल? 90 डिग्री. बराबर. तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट को, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैन वी कॉल दिस एज अ नॉर्मल? रेडियस ऑफ कर्वेचर को नॉर्मल ड्रॉ बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो अभी एक काम करते हैं. ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वॉट एवर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने लिया है ऑन द मिरर. तो यहाँ पे मुझे अभी नॉर्मल ड्रॉ करनी है. तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सर कैन आई ड्रॉ दिस नॉर्मल लाइक दिस? नॉर्मल को तो सरफेस जो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस से 90 डिग्री पे होना चाहिए ना सर? हाँ तो बेटा, तो ये जो सरफेस मैंने लिया छोटा सा, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने. यहाँ पे देखो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे. दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन एट इट. ये सरफेस पे टेंजेंट है, बराबर. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट पे ये जो
मैंने अभी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज द नॉर्मल, ये नॉर्मल का काम करेगी। तो जो भी एंगल बना है यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस रिफ्लेक्टेड रे विद दिस नॉर्मल, व्हाट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, तो ये एंगल आ आएगा और ये एंगल आर आएगा। एवरी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी यहाँ पे देते हैं ये वाला पॉइंट, चलो यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये भी एंगल और ये एंगल आ गए दोनों सेम, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जूम करके देखो आप। Yes, sir. दिस पॉइंट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अभी ये वाला लेते, ड्रॉ दी, ये रेडियस है ना, ये रेडियस क्या करती है, रेडियस विल ऑलवेज नॉर्मल टू दी टेंजेंट, ये नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ पे देखो ये, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे एक्ट एज अ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, यहाँ पे जो फोकस है वो वर्चुअल है क्या रियल फोकस है मयंक? व्हाट काइंड ऑफ फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? Sir, I know this answer. Only Anand is answering. Only Anand is answering. Real, sir. मयंक बोलो, मयंक बोलो। Real, sir. हाँ Real. रियल किस खुशी में भाई? वर्चुअल। किस खुशी में रियल? Sir, concave real रहता है ना, concave. बेटा ये कॉन्वेक्स है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट Yes, कॉन्वेक्स। convex virtual रहता है. हाँ, okay, write down. So, in case of convex mirror, there is virtual focus. Because, legal reason, because reflected rays are appear to meet at focus. Reflected rays are appear to meet at focus, that's why it is called as virtual focus. Okay, the next is focal length. Next term is focal length. Focal length, which is denoted by letter symbol small f. Small f है हाँ ये, और कैपिटल F जो है वो फोकस होता है। कैपिटल F इज फोकस, स्मॉल लेटर वाला जो है वो फोकल लेंथ होता है। अभी फोकल लेंथ देखते क्या है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। इसको नहीं लेना है, ये डिस्टेंस नहीं लेना है। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये आएगा पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। सर, हाँ बोलिए। सर अगर कॉन्केव मिरर रहा तो फिर फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच में रहेगा ना सर? दोनों में कॉन्वेक्स है वो कॉन्केव। The distance between pole and focus, this distance is called as focal length. सर तो फिर फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम हो जाएगा ना? नहीं ना बेटा, नहीं ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है,
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी पॉइंट से लेकर पोल तक और एफ पॉइंट से लेकर पोल तक, ये वाला। तो और ये जो फोकस है वो एग्जैक्टली मिड में होता है, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस सी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में फोकस होता है, वो भी लिख लेते। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ओके सर। तो स्मॉल एफ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। हमेशा आधा होता है, फोकल लेंथ हमेशा आधा होता है। हाँ बोलिए। सर हमेशा क्या सर? यस, ऑलवेज ऑलवेज। स्फेरिकल मिरर में ही होता है कि जो फोकल लेंथ होगी, अगर मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आर अगर 10 सेंटीमीटर रहा, इफ आर इज 10 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ विल बी आर बाई 2, तो विच इज 10 बाई 2, विच इज 5 सेंटीमीटर। आपको एज्यूम करके चलना है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व जब कर रहे हो आप ऑप्टिक्स के इसके, तो अगर उसमें अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करने का, समझे? यस सर। लिख लिया? ये वाला पार्ट पूरा लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड? यस सर। नो सर। ठीक है, देखो वर्ड में लिख लो, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, ओके, फोकल लेंथ इज ऑलवेज half of the radius of curvature. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। नहीं सर, साइड होने के लिए। डायग्राम बराबर ड्रॉ करो एक नोटबुक में, और अच्छे नोट्स बनाओ। जैसे व्हाट एवर आई एम गिविंग पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, पूरे के पूरे नोटबुक में आने चाहिए। आज 17 ही लोग हैं, क्या बात है। 5 लोग एब्सेंट है। Who are the 5 people are absent? विटेश पगार है क्या? विटेश Relation पगार बहुत बड़ा है। बड़ा है, बड़ा है। और कंसेप्ट भी थोड़ा अलग है, इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन पता है क्या, ये आपको 9 में भी है, 8 में भी है। सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टीच इन द क्लास 8 एंड क्लास 9। अगर आप अभी से समझ लिया ना, तो 8 और 9 में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 8 को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 8 में, समझे? सर तो सब टीचर वही रहेंगे क्या 8 में? हाँ वही रहेंगे, जो अभी वही। सर बस अमृता मैम की जगह निधि मैम आ जाएगी ना बायोलॉजी में? वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। कौन बोला आपको? कौन बोला आपको निधि मैम आ जाएगी? नहीं, एक बार अमृता मैम ने बताया था कि वो 7th को ही आते हैं और 8th को निधि मैम निधि मैम पढ़ाती है बायोलॉजी। वो तो चेंज हो, इसमें इतना खास नहीं, चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। फोटो आया था व्हाट्सएप पे, तो मतलब ऐसे दिखाया था कौन सा टीचर का सिखाते। निधि मैम बायोलॉजी को चेंज है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों अच्छे बेटा, कोई भी पढ़ा है। सर हाँ बोलो। सर इंग्लिश का टीचर कौन आएगा सर 8 में? नहीं मालूम। ओके, रब करूँ क्या राइट साइड का? रब पर करूँ क्या? इंग्लिश की क्लासेस होते ही नहीं है।
होंगे 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 होंगे। अभी लास्ट टर्म ऑफ दिस मिरर इज अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको? अपर्चर। आपने कभी कैमरा देखा है क्या? कैमरा, ओ Yes, sir. डीएसएलआर कैमरा, Yes, सोनी sir. का Yes, sir. सोनी का डीएसएलआर कैमरा। हाँ, अपर्चर। अपर्चर मतलब एक्चुअली ओपनिंग होता है, वैसे देखा जाए तो अपर्चर। अपर्चर इज द साइज ऑफ द मिरर। मेरे पास मिरर है, आई विल शो दैट। कहाँ गया मेरा मिरर? हाँ, ये वाला। हाँ, अभी ये मिरर है, दिख रहा है मिरर? कैन यू सी इट? Yes, sir. दिख रहा है Yes, क्या? sir. अभी मैंने उसको ढक दिया, उसको कुछ कवर कर दिया, उंगली से मैंने कवर कर दिया, तो इतना ही पार्ट उसका एक्सपोज है। ओके, तो व्हाट एवर द साइज ऑफ द मिरर, ये जो डायमीटर दिख रहा है आपको, ये जो साइज दिख रही है आपको, Yes, sir. दिस डायमीटर ऑफ द मिरर इज नथिंग बट अपर्चर। उसको अपर्चर बोलते हैं, एक्सपोज पार्ट ऑफ द मिरर या साइड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। समझे? वह मतलब जितना दिख रहा है उतना। हाँ, जिस जो पार्ट पे लाइट गिरता है, मिरर का जो पार्ट पे लाइट गिरता है, उतने पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? अपर्चर। द साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द साइज ऑफ द मिरर, size of the mirror is called aperture. How can you find the measurement of focal length? Focal length कैसे find करोगे आप लोग? Any idea? Any guessing? Sir, can I tell? हाँ, बोलो आनंदी। Sir, radius divided by 2. ओके, रेडियस डिवाइड बाय 2। अगर मान लो मेरे पास वो नहीं मालूम ही नहीं, मेरे को रेडियस मालूम ही नहीं, और आपको कॉन्केव मिरर दिया गया है, मान लो मेरे पास तो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, तो क्या करने का? अभी जैसे कि ये मेरा खिड़की है, खिड़की से मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। कैन यू सी दिस रे? दिख रहा है आपको? रे दिख रहा है? खिड़की Yes, से sir. रेज आ रहे हैं। Yes, sir. ओके, तो ये रेज को मैंने यहाँ पे देखो कन्वर्ज किया है, अभी ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैन यू सी दिस डाइवर्जिंग? चांद जैसा दिख रहा है Yes, आपको, लुक लाइक अ मून। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसको इसके जगह पे क्या करने का? ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके बदले में कॉन्केव मिरर लेना है, और कॉन्केव मिरर का क्या होगा? एक जगह पे कन्वर्ज होगा, यहाँ पे यू विल गेट सम रेड स्पॉट विल फॉर्म ऑन द स्क्रीन। कभी ट्राई किया क्या आपने मिरर के साथ, कॉन्केव मिरर के साथ? तनिष? No, sir. सर हाँ, तो देखो हमारे अगर स्कूल आपको में ना, कोई, हाँ सर स्कूल में वो आई कार्ड से करते थे बच्चे। है आई कार्ड से? हाँ अच्छा सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो एक काम करते, मेरे पास कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर को देखते हैं आप यहाँ पे। अरे हाँ, देखो मेरा हाथ में, एक मिनट। हाँ, देखो मैं मेरे हाथ पे ना लाल पे मैं कॉन्केव लेंस को मैं यहाँ पे कॉन्वर्ट कर रहा हूँ। सर गरम लगता है क्या उससे? हाँ, गरम लगता है, कॉन्केव मिरर है ना, ये देखो यहाँ। अरे बाबू देखो, मेरे को चटका लग रहा है, देखो सी। सर मेरे पास एक लेंस था, तो मतलब इसका टॉर्च के आगे का मैंने किया ट्राई। टॉर्च में होता है कॉन्केव सनलाइट में अगर हम उन रेज को बहुत कंसंट्रेट करेंगे हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं मतलब वो बेटा, जलता ये है। ओ चटका लग गया मेरे को, वही आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग द सेम, आई एम डूइंग द सेम। सी सी, वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? सर टॉर्च की लेंस सेम यस होती है। सर। हाँ देखो, ये मेरे पास कॉन्केव लेंस है, देखो यहाँ पे ना, देखो एक मिनट है, देखो मैं मेरा हाथ पे कर रहा हूँ, मैं आई एम डूइंग ऑन माय हैंड। तो देखो कौन से इतना जल्दी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वो, मेरा हाथ गर्म हो गया, देखो चटका लग रहा है मुझे, आई एम फीलिंग हॉट ऑन माय हैंड, राइट हैंड। तो मैं कॉन्वर्स कर दिया है, ये पॉइंट को मैंने कॉन्वर्स कर दिया, राइट। तो ये मेरा हाथ और पोजीशन ऑफ लेंस, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। गॉट इट नाउ? समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ओके और सेम वे, हाँ बोलो।
सब मतलब एक यूट्यूब पे एक वीडियो आया था कि ना मतलब है ना कॉनकेव, बहुत सारे कॉनकेव मिरर ये थे और बीच हाँ में कैसा वुड लगा था, प्लाईवुड, और मतलब हाँ उन उस वो जो कॉनकेव मिरर है ना उनको सन की तरफ फोकस किया था ना, तो मतलब हाँ हाँ वुड को मतलब ऐसा हीट बैठ रही थी तो वो डायरेक्टली बर्न हो गया था। मतलब जो आप बोल रहे हाँ, हो वो बराबर ये सब बराबर है ना। बराबर है, बराबर। अभी ये डाइवर्जिंग मिरर है मेरे पास, अगर मेरे पास कॉन्वर्जिंग कॉन्केव मिरर होता ना, तो यहाँ पे एक रेड स्पॉट आता है यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, तो ये और ये पॉइंट, फोकस पॉइंट और मेरा मिरर, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी दैट इज द फोकल लेंथ। उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोकल लेंथ। समझे? ऐसा और नो? यस सर। अच्छा, एक और दिखाता हूँ मैं, लेंस के साथ दिखाता हूँ मैं लेंस का, बहुत बेहद अच्छा है। पेड़ वगैरह फोकस कर सकते हम लोग, पेड़ वगैरह फोकस कर सकते। नहीं, उसको थोड़ा अलग सा करना पड़ेगा। नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग ही चाहिए उसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो एपर्चर समझ में आ गया सबको? एवरीवन गॉट इट, द मीनिंग ऑफ एपर्चर? Yes, sir. ओके, चलो अभी हम लेंगे हाउ टू गेट इमेज फॉर्म बाय द सर आपका कॉनकेव echo मिरर। हो रहा है। क्या हुआ? सर सबका एको हो रहा है, कोई तो भी अनम्यूट रह रहा है तो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आवाज आवाज रिपीट हो रहा है सर? सर कोई तो भी अनम्यूट कर रहा है तो फिर सबका आवाज एको हो रहा है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कौन अनम्यूट कर रहा है? सर पता नहीं। ओके, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। 5 मिनट बाकी, ठीक है, देखते कॉनकेव मिरर। To get the image from my concave mirror, we require minimum 2 incident rays. कम से कम हमको 2 इंसिडेंट, अगर 2 इंसिडेंट रे मिल गया तो 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? You will get the image at a point where reflected rays are actually meet or appear to meet. Yes or no? समझ में आ रहा है? दो Yes. लोग कौन लेफ्ट हो गए भाई? Two people left so early. तो 5 मिनट पहले ही लेफ्ट हो गए। क्या डाला है? It will be also freeze. My voice is breaking lot. आस्था मुनुत। Okay. चलो पहला ले लेते हैं। First, when incident rays are parallel to principal axis after reflection passing through focus में से जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ड्रॉ कर लिया। दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, जो इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द पोल P। और C और P के बीच में कौन सा पॉइंट होता है? क्या बताया था मैंने? What you call that point between pole and center of curvature? Focus. Principal focus F. Okay. Focal length नहीं, focal length ये होगा। This is the focal length. This is the focus. Got it? This is the radius of curvature. इसको R बोलते हैं। This is R. This is focal length.
गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस हाँ यस चलो, पहला रूल हमने क्या लिखा है? व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। चलो अभी एक इंसिडेंट रे लेते जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो ये मैंने लिया इंसिडेंट रे, ओके, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, बराबर? अच्छा, अभी रिफ्लेक्शन के बाद वो किसमें से ट्रैवल करना चाहिए? इट विल ट्रैवल थ्रू फोकस, फोकस में जाएगा। Tanish, does this reflected ray obey the law of reflection? Yes, sir. It should. देखो कैसे, अगर यहाँ पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएंगी। सी नॉर्मल कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। ये डॉटेड लाइन जो है, दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, रिमेंबर दिस इज इंसिडेंट रे, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। तो ये बन गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, which makes an angle with the normal, ये angle of reflection, और reflected ray passing through focus, किसमें से जा रहा है हो? फोकस में से जा रहा है। Got it? Yes or no? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, sir. अभी Yes, sir. सेकेंड रूल जो है, हमको और एक इंसिडेंट रे लेना पड़ेगा, ओके, सो दैट वी कैन गेट द इमेज। चलो अभी दूसरा जो रे लेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे जरा बहुत कचरा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा अलग सा ड्रॉ करता हूँ। ये कॉनकेव मिरर, ये सेंटर ऑफ मिरर, पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू पी एंड सी, इसके बीच में जो है यहाँ पे समवेयर हियर, यहाँ पे फोकस, ओके। अभी हमको लेना है सेकंड जो है, इफ इंसिडेंट रे is passing through focus, अगर इंसिडेंट रे फोकस में से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे ट्रैवल करेगा वो? कौन बताएगा? सर कैसे जा रहा है? कैसे जाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं सर, आपका क्वेश्चन पूछ रही हूँ फिर से। अगर मान लो अभी यहाँ पे मैंने पहले केस में क्या लिया था, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लिया था, रिफ्लेक्शन के वो फोकस में जा रहा है। अभी मैंने सेकंड केस क्या लिया, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे ट्रैवल करेगा? दिस इज माय इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम पैरेलल टू whom? प्रिंसिपल एक्सिस, yes or no? Yes. तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे एरो बराबर दिखावा बेटा, यहाँ पे एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बराबर? तो देखो यहाँ पे द इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद इट बिकम पैरेलल टू whom? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पास थ्रू फोकस, ओके। अच्छा चलो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ मिल सकते क्या? ड्रॉ कर सकते? हेलो, कैन वी लोकेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तनिष बोलो। यस सर। कोई Yes, लीव sir. नहीं होगा, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ लेक्चर, डोंट लीव।
हाँ, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये नॉर्मल आएगी मेरी. The point which you have done. हाँ, ये नॉर्मल है. ओके, नॉर्मल आ गई. अभी देखो बेटा यहाँ पे द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. गॉट इट? लिखा Yes, sir. आनंदी? Yes, sir. एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 5 तो बज गए. आज टाइम पता नहीं, टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया. थोड़ा 5 मिनट ले लो ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, sir. अगला क्लास कब है? अगला क्लास कब है? 5:15. हाँ ठीक है, थोड़ा सा सर को बोल देता लेट ज्वाइन करो. चलो, तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल यहाँ पे थर्ड इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर. ये तीसरा इंसिडेंट रे लिया मैंने. तीसरा इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर. ओके, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे होगा? वेयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? तनिष? Sir, हाँ. sir, angle of incidence will be between the incident ray and the principal axis. करेक्ट, वेरी गुड. ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा यहाँ पे. कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज टैंजेंट, ऑलवेज नॉर्मल टू द टैंजेंट. यहाँ पे जब मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने अगर ऐसे टैंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसको परपेंडिकुलर है. तो अगर वो परपेंडिकुलर है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल. ओके, अगर एक्ट एज अ नॉर्मल है तो हाउ कैन वी ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे? Tanish, can you draw the reflected ray? Sir, it will be equal to the incident angle of incident. Correct. लेकिन देखो हमने सेकेंड रूल क्या देखा था? सेकेंड लॉ क्या देखा था रिफ्लेक्शन का? कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के दूसरी तरफ क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी लाइक दिस. ये रिफ्लेक्टेड रे मेरा, और ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझे? लेकिन इतने तीन रे लेने की जरूरत नहीं है. हमको कम से कम 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए टू गेट द इमेज फॉर्मेशन के लिए. समझे? ये तीसरा वाला रूल है ना, अगले बार लिख के दूंगा, मुझे याद करो. ओके, आई विल गिव द नेक्स्ट टाइम थर्ड रूल. Sir, बोलो बेटा.